কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন सकल सहने बल दिया करो निज मने स्पृहाहीन सकल सहने बल दिया करो निज मने स्पृहाहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন सकल सहने बल दिया करो निज मने स्पृहाहीन सकल सहने बल दिया करो सकले समान करिते सकति देहनाथ यथायथ सकले समान करिते सकति देहनाथ यथायथ तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हत तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हत गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতিহীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষে অতিহীন কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন কৃতার্থ হইবে নাথ কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন কৃতার্থ হইবে নাথ শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন করো মোরে আত্মসাথ শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন করো মোরে আত্মসাথ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার করুণা না হলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আর করুণা না হলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আর করুণা নহিলে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব আর প্রাণ না রাখিব আর গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া
करो एई दासे तृणापख्यातिहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापख्यातिहीन Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gurudev Kripa Bindu Diya Karo ei dase तृणापेक्षातिहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापेक्षातिहीन सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एई दासे तृणापेक्षातिहीन Hare Krishna. Welcome all of you, and I offer my humble obeisances at your lotus feet. Thank you all very much. Once again, so we just sung this beautiful prayer. ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्रेयर है शरणागति बुक में भजन लालसा एंड द ग्रीड फॉर भजन. सो क्या मूड है इधर बता रहे हैं Srila Bhakti Vinod Thakur. So our acharyas, they used to release, these are the outpouring of their heart. These songs, you will see that कितने बड़े बड़े चीज ये सब सरल वैष्णव पोएम में है. So एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं. Maybe anyone can read, Prabhuji. Gurudeva, O spiritual master, give to this servant just one drop of mercy. I am lower than a blade of grass. Give me your help. Give me strength. Let me be as you are, without desires or aspirations. Thank you. Yes. Second. I offer you all respects, for thus I may have the energy to know you correctly. Then, by chanting the holy name in great ecstasy, all my offenses will cease.
Yes, thank you. When will such mercy fall to this one who is weak and devoid of intelligence? Allow me to be with you. Thank you. Yes. If you examine me, you will find no qualities. Your mercy is all that I am made of. If you are not merciful unto me, I can only weep, and I will not be able to maintain my life. Thank you. So, who is writing this? Srila Bhaktivinoda Thakur. Yesterday was his appearance day. And who is Bhaktivinoda Thakur? He is serving as a magistrate. He was serving as a magistrate in British regime. So आप इमेजिन कर सकते हैं ब्रिटिश समय में कोई इंडियंस को एक मैजिस्ट्रेट पोस्ट मिलना है, मतलब वो इतना इंटेलिजेंट होंगे तो उनका मतलब अंग्रेज सरकार उनको रिक्वेस्ट करते थे और पुरी में उनका घर से कोर्ट तक एक स्पेशल रेलवे ट्रैक बिछाया था क्योंकि उनका समय नष्ट ना हो और जो सालों सालों केस चलता था भक्ति विनोद ठाकुर 5 मिनट्स में वो केस को सॉल्व करते थे एंड ही यूज्ड टू बी सो एक्यूरेट इन हिज जजमेंट एंड डिसीजंस. व्हाई? बिकॉज ही इज प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. सो ऑल द मटेरियल ड्यूटीज तो जस्ट ऐसे ही कर लेते हैं. एम्पावरमेंट है भगवान का. सो व्हाट ही इज टेलिंग, एंड ही इज द 7th गोस्वामी. मतलब गोस्वामी 6 गोस्वामी एट द टाइम ऑफ चैतन्य महाप्रभु जितना वॉल्यूमिनस कंट्रीब्यूशंस करे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, टू द सेम मैग्नीट्यूड ही हैज आल्सो रिटन भक्ति विनोद ठाकुर. एंड व्हाट ही इज टेलिंग, जस्ट लुक एट दिस 3rd verse. When will such mercy fall to this one who is weak and devoid of intelligence? So that means ये तो बहुत क्लियर है, जो उनका मटेरियल नॉलेज है उसको तो जीरो बोल रहे हैं, ठीक है ना. डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस को काउंट नहीं कर रहे हैं एज इंटेलिजेंस. So this is the lens through which we can see क्या मूड है. फिर क्या बोल रहे हैं, एंड फिर of course एक डिवोटी although he is accomplished and spiritual intelligence उनका बहुत है, but नम्रन्ति फलन्ति वृक्षा है, जैसे मतलब जो वृक्ष में फ्रूट है वो नीचे हो जाता है. एंड ही इज टेलिंग कि आई एम वेरी वीक एंड सो मुझे क्या चाहिए, ही इज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट मर्सी. बोल रहे गुरुदेव आपका कृपा बिंदु कब आएगा. एंड ही इज टेलिंग ऑल्सो नॉट, हम बोलते हैं ना कि असीम कृपा, मैं राधा रानी प्रोफ्यूजली ब्लेस यू. सो ए just pointed mercy, because Guru is so powerful, just a point of mercy is good enough. He is telling just a point of mercy, because आपका मर्सी अगर लेट्स से समंदर का मर्सी मेरे ऊपर गिरेगा तो क्या से क्या हो जाएगा, बट उतना भी नहीं, जस्ट ए बिंदु ड्रॉप गिरे तो मेरा लाइफ कंप्लीट. तो दैट मीन्स ग्लोरीफाइंग, मतलब क्या गुरु के प्रति किस तरह का सम्मान है उनके मन में. सो व्हेन विल सच मर्सी फॉल टू दिस वन हु इज वीक एंड डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, अलाउ मी टू बी विथ यू. व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन, दैट आत्मसात, मतलब गुरु को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जस्ट कीप मी विथ यू. जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे भाई सरेंडर, ये शरणागति का है, ठीक है ना. एक सर्वेंट अगर उसका मास्टर के साथ है तो ही इज वेल टेकन केयर. एज लॉन्ग एज ही इज विथ मास्टर ही इज वेल टेकन केयर, है कि नहीं. सो जस्ट बीइंग विथ गुरु विल लीड टू परफेक्शन. एंड गुरु एक मतलब गुरु इज सच ए फ्रेंड who
will be there with you from now in the sadhana stage to the perfected stage also. And he will engage you in the eternal service of Radha and Krishna. And who are these gurus? Our Gaudiya Vaishnava Parampara ke, they are the manjaris of associates of Srimati Radharani. ललिता, विशाखा, ऐसे जो अष्टसखी हैं, इनका मेड सर्वेंट या एसोसिएट्स, उनके फॉलोअर्स लाइक दैट. सो हम भी ऐसे ही कहीं एक उसमें अटैच हो जाएंगे. ओके, जैसे जन्माष्टमी का सेवा हो रहा था, हमारा भी एक प्लेस कहाँ था. ओके, एक बिग सेवा टीम है, फिर लीडर्स है, फिर नीचे सो somehow we are serving. And that's the greatness of Krishna, that he has that ability and interest to reciprocate with each and every devotee who is engaged in service, no matter in which ladder he is. And Krishna बोलते हैं कि just practice pure devotional service. शुद्ध भक्ति अगर जो करता है वो भगवान का अत्यंत प्रिय है, और शुद्ध भक्ति में उन्होंने कोई ग्रेडेशन नहीं दिया. शुद्ध भक्ति में उन्होंने नहीं बोला कि उत्तम भक्तों को मैं ऐसा प्यार करता हूं, मध्यम को ऐसा, कनिष्ठ को ऐसा. ऑल द उत्तम भक्तस आर वेरी डियर टू कृष्ण. एंड इधर क्या है, सपोज लेट्स से व्हेन वी आर डूइंग एनी सर्विस, ओ एम आई बीइंग नोटिस्ड, मे बी द मैनेजमेंट do not have this ability to see, but yes, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए. आज वो सब चीज हम डिस्कस भी करेंगे. So but Krishna has that ability. So now, okay, we are deviating from the discussion. So let us go to the beginning. कृपा बिंदु दिया करो ए दासे. खुद को क्या बोल रहे हैं? सर्वेंट. ठीक है. सो शरणागति का प्रिंसिपल ही है ये. मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम, वो तो है ही है, बट प्योर डिवोशन स्टार्ट्स फ्रॉम शरणागति. बोले आप अगर सरेंडर नहीं करोगे टू आचार्यस, टू योर गुरु, टू द प्रोसेस, टू द टीचिंग्स, टू द ऑर्गेनाइजेशंस, टू द अथॉरिटी, देन हाउ कम भक्ति विल बिगिन. You see, सर्वेंट आपके घर में आएगा विदाउट कंसिडरिंग यू एज मास्टर, कैसे वो काम कर पाएगा? प्रॉपर मूड में नहीं कर पाएगा. He has to have that feeling in the mind that hey, he is my master, I am his दास. कुछ भी हो जाए उसका, he will continue to serve. जैसे हमारा मतलब पिताजी बोलते थे, जब हम बचपन में उनको बोलते थे भाई आज आप छुट्टी कर लो, नहीं हमने तो सर बेच दिया है, ऐसे बोलते थे. मतलब वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, तो हमने तो सर बेच दिया है, फिर कैसे रह सकते हैं? सो इट्स लाइक दैट. सो दैट इज सरेंडर, यू नो, सरेंडर टू द अथॉरिटी जिसके पास काम कर रहे हैं. ठीक है. हमको भी ऐसे भक्त हम अगर बनना चाहते हैं तो सरेंडर करना पड़ेगा. मेरा स्वाभिमान, दिस दैट, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो सब कुछ नहीं होता है. वी मतलब लूज आवर इंडिपेंडेंस ऑन द हैंड ऑफ गुरु. देन तृणा पक्षे तृणा अपेक्षा अतिहीन बोलते हैं. तृण से भी कंपेयर करेंगे तो मैं उससे हीन हूं. खुद को जो दास बोल रहे हैं, किस तरह का दास हो? बोले कोई क्वालिफिकेशन नहीं, मैं तो तृण से भी वो हूं. सो जनरली व्हेन समथिंग, ओ आई क्वालिफाई सो एंड सो, देन प्लीज कंसिडर मी फॉर दिस. सो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिख रहे हैं, बोले नो क्वालिफिकेशन. तृण से भी हीन है, बट कृपा बिंदु चाहिए आपका. फिर सकल सहने बल दिया करो निज मानस प्रियाहीन. अगर आप सर्वेंट हो गए तो फिर ह्यूमिलेशन तो होगा. कोई आपको डिसरेस्पेक्ट करेगा, कोई आपका सर्विस को लाइक नहीं करेगा, ऑल ऑफ दैट विल हैपन. वो बोल रहे हैं उसके लिए सहन करने के लिए बल चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है, वो आप ही देंगे. आपका जो कृपा बिंदु है उधर से ही मुझे मिलेगा. और
निज मानेस प्रिया ही न, और खुद के लिए मतलब आई विल नॉट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग। ओके, सो ये कौन सा वर्ष से आता है शिक्षाष्टकम में? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। So this is a plea to the Guru only. That's how our acharyas do. जब हम तृणादपि सुनिचेन किसको बोल रहे हैं? ठीक है, गुरु का मर्सी से ही ये होगा। हम जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम शिक्षाष्टकम एवरी डे गाते हैं, क्या हम तृणादपि सुनिचेन आता है या अमानिना होता है या माना देना होता है? ठीक है, बट यस एक रिमाइंडर है। ठीक है, बट गुरु को प्रोफ्यूजली प्रे करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद के पास जब हम आते हैं, इधर बैठते हैं, ओ माय गुरुदेव, परम गुरुदेव, प्लीज रेस्टोर दिस, बिकॉज क्या बोल रहे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? वो बोल रहे हैं सकल समाने करिते सकति देहनाथ जथाजथ तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध हत। मतलब हरिनाम को जो उच्चारण करूंगा अपराध विहीन, विदाउट एनी ऑफेंसेस, एंड देन रिलीज द नेक्टर ऑफ दैट विल ओनली हैपन बाय दिस। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। अमानिना बोल रहे हैं, ठीक है ना, निज माने स्पृहा ही ना। ओके, और मान देना बोले सकल समाने मान देना, सबको सम्मान करूंगा, और सहिष्णुना सकल सहने बल दिया करो। तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध व्याहत। अपराध विहीन चैंटिंग करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को तृण से भी छोटा समझना है ना, और पेड़ जैसा टॉलरेंस कल्टीवेट करना है, सबको रेस्पेक्ट देना है, खुद का रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना। ये चार चीज अगर हम कर पाएंगे तो फिर हम अपराध विहीन चैंटिंग कर पाएंगे। आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया है, कैसे मतलब कोई रियलाइजेशन है, कोई शेयर करेंगे? मेरे साथ जब चैंटिंग करते हैं तो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मन लैमेंटेट करते, या तो लैमेंट और भी डिजायर, लैमेंटेशन और डिजायर इसी चक्कर में होती है। अगर ये नहीं होगा तो लैमेंटेशन डिजायर होती नहीं। और सरेंडर भी उससे रिलेटेड है, क्योंकि आप चैट कर रहे हो और आपको मन नहीं लेके जाता, तो अगर आप सरेंडर करोगे तो मन हो जाए, क्योंकि आप कंट्रोलर मन पे जाते हैं, हम कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं, मैं ये कर दूँ, तो वो कंट्रोलर करते तो मन ज़्यादा रहते कि हाँ कंट्रोल करते, प्रोटेक्ट करते हैं अपनी ईगो को। और वहीं पर आप सरेंडर करते हैं हरी को, तो मन जरा आ जाऊँगा, तो ये फिर आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे चैटिंग कर पाएंगे, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चैटिंग। वेरी नाइस। सो अपराध का मेन एक होता है कि टू फाइंड फॉल्ट्स ऑन द वैष्णवास, राइट, क्रिटिसाइज द वैष्णवास हु हैव डेडिकेटेड देयर एंटायर लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। क्या होता है ना, आप अगर मास्लोस का नीड हायरार्की थ्योरी में जाएंगे तो एक हमारा ऊपर का उसमें आता है सेल्फ एस्टीम, विथ चैंटिंग मर्सी ऑफ द डिवोटीज, विथ योर प्रैक्टिसेस, ये जो मटेरियल डिजायर से टू सम एक्सटेंट कर्व हो जाता है। चलो ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग आता है, भाई ये पैसा के पीछे नहीं भागना है, दिस हैज ओनली ए यूटिलिटी वैल्यू, हाँ मुझे अपना फोकस रखना है, तो समहाउ सपोज लेट्स से यू ओवरकम ऑल ऑफ दैट, ये हो पाता है। बट लेकिन जो एक सेल्फ एस्टीम है ना, खुद का जो एक आत्म स्वाभिमान और जो सेल्फ रेस्पेक्ट, वो इतना जल्दी नहीं जाता है। तो भाई भक्त तो हम बन गए एक इंस्टीट्यूट में, बट रहते रहते कभी कुछ कोई बोल दिया है ना, तो वो मन में कैरी होता है। ठीक है, तो फिर अगर घर पे भी, और ये है जब जिनके साथ आप ज्यादा बैठते उठते हो है ना, तो उन्होंने कुछ बोल दिया आपके मन में है, तो वही सब जपा के टाइम पे चल रहा है, आप उनके बारे में जजमेंटल हो रहे हो, कुछ वो कर रहे हो। एक तो है जपा से
अटेंशन हटता है, वो 10वां अपराध हुआ, ठीक है। देन उनके वैष्णव के ऊपर तरह तरह के वो आते हैं, अरे ही इज नॉट दैट परफेक्ट, यू नो, ही जस्ट लुक एट वन साइड ऑफ दिस, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, यू नो, पीपल आर, यू नो, प्रीचिंग इज नॉट लाइक दिस। ऐसे तरह तरह का माइंड में वो आता है। वो इस तरह का, जैसे ये जो एटीट्यूड हम अगर ये करेंगे, हम कुछ है ही नहीं, अरे दे आर सो एक्सपीरियंस, सो मेनी इयर्स दे आर serving the Lord, chanting the holy name, maybe, you know, I am not able to see that side of this. Okay, so because japa is not the time for contemplating all of this, है ना, इसके लिए हमको हम बोलेंगे अरे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, वो आप उसको फोकस नहीं करेंगे तो when there is something asked you will tell। ऐसा नहीं कि आपको उसको कॉन्टेम्पलेट करके वैसा करना पड़ेगा, नहीं, यू जस्ट सॉ कि भाई क्योंकि डिस्कशन हो रहा है ना देर इज, बट लेकिन आप अगर उसको सोचते हो, मंथन करते हो, तो फिर वो जपा के टाइम पे आता है। जपा नहीं कर रहे हैं, वही सब चीज कर रहे हैं, ठीक है। एंड सो ऑल ऑफ दैट, ये फिर जो है इसीलिए क्या है ना, टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टॉलरेंस क्या है, जो भी जैसा भी हमारा साथ व्यवहार करे, ओके, मैं आया हूं इधर सम्मान पाने के लिए नहीं, अपना गुणगान करने के लिए नहीं, अपना स्किल्स एंड एबिलिटीज दिखाने के लिए नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए ये सब क्वालिटीज है, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ही नहीं। सो व्हाई शुड आई वर्क? मुझे कोई बड़ा फेस्टिवल में एक सुपर लीडर का रोल मिलेगा, ओके, तब जाके मेरा भक्ति में प्रोग्रेस हो पाएगा? नहीं। ओके, इफ यू हैपन टू बी इन दैट इट्स गुड, नहीं है तो कोई नहीं। कोलाबेच श्रीधर, यू नो, चैतन्य चरितमृत में आता है, जो कि बनाना सेलर, उसके साथ चैतन्य महाप्रभु का जो रेसिप्रोकेशन है, एवरी टाइम वो जाते थे, वो कोलाबेच श्रीधर के साथ उनका नटखट नोकझोंक होता था, फाइट, ठीक है। बट जब महाप्रकाश लीला महाप्रभु कर रहे हैं, मतलब वन नाइट इन द श्रीवास आंगन, महाप्रभु अष्टकालीय लीला करे और अपना जो भगवत्ता को उन्होंने प्रकाश किया, ठीक है। मतलब छन्ना बता रहे हैं महाप्रभु, जनरली कवर करके रखते हैं, बट बिफोर टेकिंग द संन्यास he has just developed that mood, and then महाप्रकाश लीला इसको बोला जाता है। then each and every devotee को कॉल कर रहे हैं एंड उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और उनके साथ क्या पर्सनल रेसिप्रोकेशन है वो बता रहे हैं। इन दैट ही कॉल्ड, वेयर इज कोलाबेच श्रीधर? ओके, श्रीवास गदाधर सब एक एक करके हो गया, वसुदेव दत्ता, दिस दैट, फिर कोलाबेच श्रीधर को, अरे कोलाबेच श्रीधर कौन है? Nobody. So that's how Lord is compassionate toward। वो कोई भी डिवोटीज को छोड़ते नहीं है, कितना भी अगर वो प्योर डिवोशन है, उसका हाथ में प्रेम है, तो भगवान उसको वो करते हैं। तो ये सब है ही नहीं, तो हम क्यों अपना सम्मान दिस दैट उसके पीछे वो भागे, ठीक है। ये सब बहुत हमने कोशिश किया अपना मटेरियल लाइफ में, एटलीस्ट इधर तो आके वो सब ना करें, सब छोड़ दे, क्योंकि कृष्ण प्रेम पाने के लिए आए हैं, क्या हम बेकार में फंस जाएंगे, फिर वही चक्कर में फंस जाएंगे, ठीक है नहीं। तृणादपि सुनिश्चय न तरोरपि सहिष्णु न अमान्य न मान देना। खुद के लिए कुछ रेस्पेक्ट हासिल नहीं करना है, भाई मुझे ये प्रणाम करेंगे, मुझे ये अभी इंट्रोडक्शन अच्छा होगा ना। और ऑलवेज एक चीज मेरा पर्सनल एप्लीकेशन है, बताता हूँ, don't lose the opportunity to glorify a devotee. Krishna become very happy if you glorify this devotee. Srila Prabhupada will be very happy because he has told in the last statement, if you really wanted to love me, please cooperate. Okay, please cooperate. So if he sees that everyone is glorifying everyone, okay, so and क्या होता है, अगर आपका थोड़ी सी भी कुछ ट्रेस ऑफ मालिश है उस डिवोटी को, आप अगर बार बार ग्लोरीफाई करेंगे ना, तो चला ही जाएगा, रहेगा नहीं। कितना आप फेक करेंगे,
Okay, we cannot fake. तो चला ही जाएगा. And then you will started seeing the good quality. So birthday is one of the important day. At least क्योंकि भाई सब व्यस्त हैं, अब बोले कैसे क्या ग्लोरीफाई करें, फोन कॉल करें, साधना करें, इसका एक प्रैक्टिस करिए. ऑन द बर्थडे आई विल ग्लोरीफाई सो एंड सो डिवोटी. ओके, कुछ तो उसका अच्छा गुण मैं देखूंगा और उसको मैं लिखूंगा. इट्स नॉट अबाउट एग्जैजरेटिंग, इट्स नॉट अबाउट, एक्सप्रेस योर हार्ट. ओके, सो ChatGPT is going to help if you put your thoughts. It make a nice so that you don't hesitate. अरे मेरा इंग्लिश ठीक है नहीं है. ओके, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया जो भी लैंग्वेज करोगे लिख देगा, फिर प्रवेश करोगे. आपका ही ओन थिंग्स है, बट जस्ट एक स्ट्रक्चर दे दे. सो प्लीज प्रैक्टिस दिस. By this we can create a nice. Who doesn't want to hear good about himself? Who doesn't want? ठीक है. He will be very happy. And this is you can please. कौन अपना बर्थडे में दुखी रहता है? कितना भी प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट he try to be happy on their day. And Vaishnava is happy. And Vaishnava हम बोल रहे हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च. That is the place of the Vaishnava. He is a desire fulfilling tea. Okay, and he is happy. And in that happy mood you put your application. So ठीक है, उनका मन में थोड़ा खुशी आपने दे दिया, तो कृष्णा विल बी प्लीज, श्रील प्रभुपाद विल बी प्लीज, एंड ये जो कृपा बिंदु है दैट विल फॉलो मी. सकल समान करिते सकत, ये हो गया. देन कबे हेन कृपा लभिया एजन कृतार्थ होइब नाथ सकत शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दिन करो मोरे आत्मसात, ये डिस्कस हो गया. देन योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा करुणाचार. अगर इफ यू एग्जामिन मी then also you will not find any quality in me. मतलब वो बोलते हैं गुरु इतना असीम नॉलेज का वो पावर हाउस है, उनका अगर एग्जामिनेशन वो अगर करना चाहेंगे मुझे, तो मेरा नॉलेज फिट नहीं बैठेगा उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. बोलते ना वो कैट, ओके उसमें क्वालिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है. लाइक दैट, उसका सिलेबस, उसका वो इतना प्रबल है. गुरु को ऐसा देखना चाहिए. ओके, गुरु इज फॉरगेटिंग वन श्लोका, शिष्य इज प्रॉम्प्टिंग. नो, डोंट एवर. एक्चुअली भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए अभी शुरुआत है, क्योंकि हमने तो गुरु अभी लिया नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ए गुरु इज. गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना है. गुरु हैज ऑल द एबिलिटी टू टेक यू टू कृष्णा. दैट्स व्हाट इज needed for him to be guru. He may not be very eloquent speaker or remember all the shlokas and everything, not necessarily, because these are externals, these are not the proper qualifications. Okay, so guru को इस तरह से, ये इनका गुरु कौन है? इनका गुरु कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज. ओके, अभी वो चले जाएंगे तो प्रसंग से हम हट जाएंगे. अब पढ़ना. ओके, श्रील भक्ति सिद्धांत विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज. आप अगर मेटेरियली ऐसे, मतलब दिस इज मंकी माइंड, आप अगर ऐसे कंपैरिजन भी करोगे वर्सेस, तो आपको लगेगा अरे भक्ति विनोद ठाकुर इतना अकम्प्लिस्ड है. बट गुरु, ओके, मतलब साधारण शरीर नहीं है. ही इज एम्पावर पर्सनालिटी. ही इज oceanic knowledge powerhouse. The same mood is seen in Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. For his guru Gaur Kishore Baba Ji Maharaj, who is not, जो materially जो education है उनका है नहीं, but गुरु के प्रति, so गुरु के प्रति प्रीति will take us to Krishna. Otherwise there is no hope. There is no hope. So how I will develop गुरु प्रीति? प्रे नित्यानंद. Okay? इधर जो आप आते हैं, जो लेफ्ट साइड में पूरा है ना, बहुत खतरनाक है. उनको अगर प्लीज किया, ओके, नित्यानंद प्रभु को अगर प्लीज किया, गुरु कृपा बरसेगा. Who is नित्यानंद? He is the representation of Balaram ji. Who is Balaram? Krishna himself in the mood of servant. God himself, but taken the role of a servant.
एंड हिज मैनिफेस्टेशन इज निताय। एंड नित्यानंद का कृपा होगा तो आप गुरु, एंड गुरु को प्रीति करके हम अगर सर्व करेंगे, देन इन द प्रैक्टिस स्टेज वी आर ड्रिवन बाय नित्यानंद कृपा, and when we will be perfected, we will be driven by Radharani's Kripa. Guru is the combined representation of Nityanand Prabhu and Radharani, depending on what the level of Shishya is. In the material world, he is serving Lord Nityananda. In the spiritual world, he is serving Srimati Radharani. Clear? Good. Thank you all very much. So, इसीलिए गुरु पूजा is very important. जो आप जस्ट सपोज लेट्स से सम टाइम अगर आप एफटीपी सेशंस जो होता है, मतलब आप कोशिश करिए कि 7:30 पे आप रीच करिए, दर्शनार्थी करने के बाद, सॉरी श्रृंगार दर्शन करने के बाद आप गुरु पूजा जो होता है ना उसको अटेंड करिए। इट्स सो वेरी पावरफुल एक्सप्रेसिंग, मतलब उसमें वो जो नरोत्तम दास ठाकुर का वो जो प्रेयर है फॉर हिज गुरु इट्स लाइक वंडरफुल। अधम जनर साथी इज द सेम। आई एम, मतलब गुरु, देखो इस जगत में आपका साथी कौन होगा? वन हु सीज सम क्वालिटी। आप भी डीवाईपीएस में आए, ओ ही इज ए वेरी हाई लेवल इन प्रोफेशनली गुड, ओ मैंने उनसे कुछ सीखना मिला है, उनका साथी में बनाता। ऑल्दो वी कम हियर टू लर्न डिवोशन, बट ऐसा होता है। वो हीज मतलब अनर्गल श्लोक का उच्चारण करता है, वो मैं इनका साथ होता हूँ, थोड़ा संस्कृत में मेरा पारदर्शी, कुछ ना कुछ क्वालिटी देख के हम, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट गुरु डजंट सी एनी क्वालिटी इन यू बट स्टिल एक्सेप्ट यू। आप बोलिए कौन ऐसा, एनी वन यू हैव सीन इन दिस? क्वालिफिकेशन क्या है? जस्ट आई एम सरेंडर टू यू। ओह माय गुरुदेव, आई एम सरेंडर टू यू, जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, दैट्स इट। आपका वाणी जो है वही मैं करूंगा, दैट्स इट। सो विद दैट वन स्टेटमेंट ही टेक्स। सो इट्स नॉट सो वेरी डिफिकल्ट, सिंपल, बट वो करना जो है दैट्स अ लाइफ टाइम ऑफ प्रैक्टिस। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्।
I pray at the lotus feet of Sri Radha Damodar, Sri Gaur Nitai, Sri Jagannath, Baladev, Subhadra, Sudarshan ji. I pray for the empowerment and abilities to deliver the session of today, so that all my words be pleasing to your heart, satisfying, pleasing to your ear, satisfying to your heart, and reveal the proper meaning to your intellect. And in this process, let me develop humility and some realization which will help me to practice my devotional service properly. Thank you all very much once again. Welcome to 6S FTP series. So, Swasthya, Samaya, Samadhan, Samsadhan. You must have heard previous speakers. स्वास्थ्य हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी लिए थे या नहीं? नहीं? अच्छा, समय समय हुआ था, संसाधन हुआ था. अच्छा, ठीक है. सो स्वास्थ्य, सो प्रभु जी का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए ये पेंडिंग चल रहा है. सो देन अभी शिक्षा एंड साधना, ओके, एंड अदर 3 विल फॉलो आफ्टरवर्ड्स. ओके. सो टुडे बेसिकली इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. So the time bound, whatever is said is. अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है भी दिख रहा है नहीं? Why F7 फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है? यस, ठीक है, गुड. यस, एक मिनट. Yes. So yes, शिक्षा एंड साधना, ठीक है. टाइम बाउंड जो सेट किया गया है, इट्स रियली मतलब मैं तो इसमें कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा ये सब टॉपिक जो है, बट फिर भी कोशिश करेंगे एक क्विकली एक पॉइंटर के थ्रू वी विल ट्रैवल, एंड आई विल ट्रैवल वेरी फास्ट. सो आप इंटरप्ट करिए जहाँ जहाँ आपको और मोर क्लैरिफिकेशन चाहिए. सो यू हैव बीन हियरिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, एंड आई होप यू विल बी एबल टू कोप अप. ओके. सो इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे? मूड्स एंड मेथड्स एंड सम जनरल प्रैक्टिस और एप्लीकेशन पॉइंट फॉर मी एज ए साधका. ये हमारा मेन वो रहेगा, ठीक है. तो let us read few quotes from Srila Prabhupada again. Yes, Prabhuji. Every day you have to read my books. Do you know that every day even I read my own books? Do you know that or not? Why I read my books? I write them, but I read them also. So if I read my books, what to speak of you? When I read them, I learn something. Do you know that? I learn something every time I read these books. Every day you have to read my books. Okay, so there is no doubt. Okay. Yes, thank you. Vedanta is the summary of all the Vedic literatures. Anta, the supplement of the Vedic literatures. And Srimad Bhagavatam is the explanation of Vedanta Sutra. Bhashyam, Brahma Sutrana. In every chapter of Srimad Bhagavatam, you will find Brahma Sutra Bhashya. Quote, this is real commentary on the Brahma Sutra, unquote. So one should read daily at least 1-2 hours, that is human life, reading Srimad Bhagavatam daily. So first Srila Prabhupada is telling I am reading my books. So that is the standard of his literatures. And of course that makes sense. And here he is further clarifying, oh, you may think that, oh, I will read all the Vedas. Srila Prabhupada is telling कि वेद का जो मेन सार है वो वेदांत है, ठीक है, the conclusive principles of Veda, and Srimad Bhagavatam is a natural commentary to Vedanta. So hence Srimad Bhagavatam is comprising of everything, and I have written a commentary to it.
So in my literature you will find everything. So in Srila Prabhupada's literature, we will find everything, all the Vedic knowledge, 10 to the power 10 shlokas, those essence are encapsulated in Srila Prabhupada's book. Okay? So जीवा गोस्वामी ने ये जो आप अगर उनके जो संदर्भ है उनमें उन्होंने दिखाया है, ये जो फर्स्ट वर्स जो है ना, जन्माद्यस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सुरयः तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवतम का पहला श्लोक है ये। इसको श्रील जीवा गोस्वामी दिखाते हैं कैसे जन्माद्यस्य, दैट्स द फर्स्ट aphorism of Vedanta, that's there in this verse. Then अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, okay, so all of that तीन चार ऐसे जो वैदिक एफोरिज्म है उसको करते हैं एक श्लोक में आपका इधर पाया जाता है। तो भागवतम इज कंप्राइजिंग ऑफ 18,000 वर्सेस एंड वैदिक एफोरिज्म जो वेदांत में है और ऑलमोस्ट कुछ 550 समथिंग ऐसे कुछ है। तो ऑल ऑफ दैट इज देयर इन श्रीमद् भागवतम एंड श्रीमद् भागवतम इज कमेंटिंग ऑन दैट। मतलब एक सूत्र को जैसे कमेंट्री, जैसे श्लोका को श्रील प्रभुपाद का परपट व्याख्या करता है, ऐसे सो ऑल वैदिक टीचिंग्स को श्रीमद् भागवतम अपने मतलब इट्स ए नेचुरल कमेंट्री। एंड श्रीमद् भागवतम क्या जो हमारा गौड़ीय वैष्णव का टीचिंग क्या है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, है ना। हमारा आराधना का जो ऑब्जेक्ट है कौन है, ब्रजेश तनयस, ब्रज कृष्णा, है ना। ब्रजनंदन कृष्णा इज आवर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। आराध्य तनयस, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, and what is the highest abode of him where he reside, Vrindavanam. Then who are his topmost devotees, रम्या काचित ब्रजबधु उपासना वर्गेन वा कल्पिता, जो गोपीज हैं the damsels of Braja, they are the topmost devotees, so we have to follow in their footsteps, है ना। जैसे बोलते हैं ना दास दासानुदास, गोपी भर्तुर पदकमलर दासो दासानुदास, ये हमारा आइडेंटिटी है। बोले पंकज प्रभु आपका क्या आइडेंटिटी है, गोपी भर्तुर पदकमलर दासो दासानुदास। ठीक है क्या प्रभु जी, जय प्रभु जी। गोपी भर्तुर, गोपी भर्तुर पदकमलम दासो दासानुदास, जितना दास लगा सकते हैं चलेगा, नो करेक्ट ना, ठीक है। सो देन श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, बोलते हैं प्रेम पुमार्थो महान, बोलते हैं कौन सा लिटरेचर है हमारे लिए स्टडी, बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। क्यों ना, ये अमल पुराण है, इट इज ए स्पॉटलेस पुराण। ऑल द टीचिंग्स का कंक्लूसिव ट्रूथ श्रीमद् भागवतम है, ठीक है। देन प्रेम पुमार्थो महान, व्हाट इट इज इंस्पायरिंग फॉर अस टू एस्पायर फॉर, प्रेम पुमार्थ महान, बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो वेद का जो चार अर्थ है पुरुषार्थ, बोलते हैं नहीं, ये सब नलिफाइड, प्रेम पुमार्थ महान, पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है, दैट श्रीमद् भागवतम इज रेकमेंडेड। चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्र दार नापर, तो ये चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स है। ओके, ब्रज कृष्णा को आराधना करो, ब्रज गोपी का शरण करके, अनुसरण करके, मतलब वो हो गया अपना आचार्य, क्योंकि आचार्य सब्सिक्वेंटली उन्हीं को करते हैं, और एस्पायर करो गोलोक जाने के लिए, गोइंग टू गोलोक, गो बैक टू गॉड हेड वृंदावन, पढ़ के श्रीमद् भागवतम, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या है भाई, कुछ बिना रिजल्ट का थोड़ी ना कोई करता है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए, ठीक है। दिस इज द एसेंस ऑफ गौड़ीय टीचिंग। पढ़िए। So in this way, if we study Srimad Bhagavatam, we can understand what is the nature of God, not we manufacture, but there is the philosophy, the authority, everything there in Srimad Bhagavatam. So if we simply scrutinize
we study how, what sort of body God has got. It's simple. It is in simple language. Is given Satchid Ananda. Ananda means blissful, always blissful. Understanding the nature of God through study. यस, थैंक यू। इसमें क्या है? ये 4 हमने एफटीपी ट्रेनिंग में डिस्कस किया था, 4 पिलर्स हैं, ठीक है ना? बुक्स आर द बेसिक, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। आज जो हम डिस्कस करेंगे मोस्टली ये दोनों में फॉल करता है। शिक्षा जो है बुक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिस कैसे उसको यूटिलाइज करना है। तो क्या श्रील प्रभुपाद क्या लिखे हैं, नीचे पढ़िए। Structured learning and cognitive sadhana are the backbone of stable and progressive conscious life. भक्ति में अगर हमको आगे बढ़ना है तो स्ट्रक्चरली हमको पढ़ना है एंड फिर उसको अप्लाई करना है। पढ़ना है, अप्लाई करना है, पढ़ना है, अप्लाई करना है। सेम ऑल्सो इन आवर जो मटेरियल लाइफ में हम जो एजुकेशन लेते हैं उसको अप्लाई करते हैं और फिर रिजल्ट प्रोड्यूस होता है ना। सो हियर भक्ति का जो गुड़ा प्रिंसिपल्स है, गुरु के प्रति ये जो निष्ठा है, श्रद्धा है, ओके, कैसे हमको पता चलेगा? हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब तो जाके ना पता चलेगा, और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ सो देयर आर, सो भक्ति जो है, भक्ति का पूरा व्याख्या उन्होंने करा है श्रील रूप गोस्वामी, इसलिए हम रूपानुग कहा जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपने जो भक्ति रसामृत सिंधु का ग्रंथ में और भक्ति का पूरा एलाबोरेशन किए, ओके। नो वन इन एनी ट्रेडिशन हैव डन दिस काइंड ऑफ रिमार्केबल वर्क इन एक्सप्रेसिंग द हार्ट ऑफ ए प्योर डिवोटी। क्योंकि सपोज प्योर डिवोशन तो भक्त का हार्ट में है, रिवील उन्होंने करा है इन भक्ति रसामृत सिंधु, हमारे लिए वो हाजिर है पढ़ने के लिए। इवन दो वी आर नॉट देयर, बट स्टिल हमको पता चलता है क्या होगा उस स्टेज में, प्रेमा भक्ति स्टेज में क्या होगा, भाव स्टेज में क्या होगा, ओके। जैसे भक्ति का सब पहाड़ है, ओके, 9 स्टेप्स है, बताएंगे कौन? श्रद्धा, देन बताइए, साधु संग, ओके, देन भजन क्रिया, देन अनर्थ निवृत्ति। वेरी सिंपल है, क्योंकि रोड मैप अगर हमको पता नहीं है, रोड मैप हम अगर जानेंगे नहीं तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। पंकज प्रभु जी तो पहले तो मांगते होंगे, भाई गिव मी योर रोड मैप, यू नो, आई वांट टू सी ए बिगर पिक्चर फर्स्ट, ठीक है। सो भक्त का रोड मैप, हमारा रोड मैप क्या है? पहले तो हमारा श्रद्धा होगा, ठीक है। श्रद्धा उत्पन्न हुआ, श्रद्धा के बाद साधु संग, हमने संग किया, ये जो सब हो रहा है संग ही हो रहा है, ठीक है। सो संग में इंस्पायरेशन मिलेगा भजन करने के लिए। जपा, कोई बोला भाई जपा करो, है ना। मैं जस्ट सिंपल वर्ड में बता रहा, दिस कैन बी एक्सप्लेन इन मच डिटेल ऑल्सो। भजन क्रिया क्यों करूं मैं? क्योंकि मेरा जो प्यूरिफिकेशन होगा, अनर्थ जो है वो सब निवृत्ति होगा। भाई कृष्ण के लिए प्रीति होगा कैसे? मेरा तो अभी प्रीति है भौतिक वस्तुओं के लिए ना, ये प्रीति कैसे मैं कम करूं, ये नट्स कैसे मैं काटूं? तो भजन क्रिया, जपा, भजन क्रिया करोगे तो क्या हो रहा है? वही है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ जो है वो वॉशिंग होगा, है ना, धुलाई कपड़ा, ठीक है, टिकिया रगड़ रगड़, तो वो सब मैला जाएगा, फिर निष्ठा आएगा। आप बोलोगे ओ प्रभु जी मेरा ना ऊपर नीचे हो रहा है, तो निष्ठा के स्तर पे ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आचार्य तो बोल रहे वो तो होगा ही, तुम्हारा भजन क्रिया निवृत्ति तक ये होगा ही। जो 4 सोपान जो है वो ऊपर नीचे होते ही चलेगा, नथिंग टू बी वरी अबाउट इट, ठीक है। तो करना क्या है? भजन क्रिया, क्योंकि यही एसेंस है ना, अनर्थ निवृत्ति तो यही कर रहा है। निष्ठा क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज अदर अनर्थाज हैं, अदर अनर्था हमको ड्रैग कर रहा है। हम बोलेंगे ये ड्रैग कर रहा है, वो ड्रैग कर रहा है, अरे नहीं, आपका उसके प्रति आकर्षण है, तब भी तो आप ड्रैग हो जा रहा, ठीक है।
वो अनर्थ जब कट हो जाएगा तो आप कुछ भी एक्सटर्नलिटी जो है आपको कोई ड्रैग नहीं कर पाएगा, कोई भी सिचुएशन है। निष्ठा, ठीक है, ठीक है। देन फिर आसक्ति, निष्ठा के बाद आसक्ति। आप बोलते हो अरे प्रभु नाम के प्रति कुछ आसक्ति, आसक्ति आसक्ति तो उसके बाद है, ठीक है ना, डीप अटैचमेंट फॉर चैंटिंग, आसक्ति। देन टेस्ट मुझे नहीं मिल रहा है, वो आसक्ति के बाद रुचि मिलेगा। पहले निष्ठा, देन रुचि, मतलब पहले स्टेडी प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, देन इट विल लीड टू रुचि। भाई कंसिस्टेंटली कोई परफॉर्म करता है अच्छा, तब तो जाके उसको प्रमोशन दिया जाता है ना पहले प्रमोशन दिया जाता है फिर बोलते हैं तुम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो ना। एडवांस प्रमोशन है भाई, अगले 3 तुमको 150 करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। सो रुचि उसके बाद, ठीक है। देन आसक्ति, रुचि, देन भाव, देन फिर जो स्पिरिचुअल इमोशंस जो है वो सब अष्ट सात्विक जो हम बोलते हैं वो विकार होगा, एंड मेनी अदर spiritual emotions will be able to experience bhava stage, okay, and then prema. And जो गुरुज होते हैं they are above this निष्ठा, ऊपर है, most likely in the level of भाव और प्रेम, okay। और भाव और प्रेम में जो है वो ही मतलब स्पिरिचुअल बॉडी है उनका, इवन दो दे आर मटेरियली। एक मैं सुन रहा था, गौर गोविंद स्वामी महाराज का एक डिसाइपल बोल रहे थे कि गुरु को एक साधारण घुस ही जाता है माइंड में, क्या है बोलो, वो ऐसे बोल रहे थे भाई स्वल्प बुद्धि है, क्या करूं। मैंने एक दिन ऐसे गुरु को सेवा कर रहा था, फिर गुरु ने अपना मैंने लास्ट स्टेज में, अंतिम अवस्था में वो अपना मल त्याग करके गए हैं, तो इसने फिर क्या करे ना, वो मल को आके स्मेल कर रहे हैं। बोले अरे गुरु अगर स्पिरिचुअल बॉडी है तो फिर ये तो, फिर उसने बोले ओ माय गॉड इट वाज नॉट स्मेलिंग एनीथिंग। तो उसी दिन से मैं जाके गुरु का पैर पकड़ लिया, बोला गुरु प्लीज माफ करिए, मेरा दुष्ट बुद्धि है, मैं आपको ना कुछ कुछ समझ रहा था, फिर बट गुरु जो है इतना कृपालु है, वो माफ कर देता है, वो माफ कर देता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, इंसिडेंट्स। सो श्रील प्रभुपाद को ऐसे वो टेस्ट करने के लिए उनके डिसाइपल सचिनंदन स्वामी महाराज जो हम बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बोले श्रील प्रभुपाद तो चैंटिंग तो कर रहे हैं बढ़िया, फिर जब वो अकेले में रहते हैं क्या करते हैं डिवोटी अकेले रहते हैं गुरु जी, बोले विंडो से वो देख रहे हैं थोड़ा श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अपना बुक रेडी कर रहे हैं। बोले नियमित तो चैंटिंग कैसे, फिर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मैंने उनको आवाज देते हैं, मतलब उनको पता चल गया समवन इज, फिर गुरु जो पूरा थर थर के आते हैं, फिर क्या है श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मतलब जस्ट ऐसे गुरु श्रील प्रभुपाद जनरली नहीं बोलते हैं, ये सब चीज दिखाते नहीं है उनका ये पोटेंसी, और उनको बोले कि आप पीछे थोड़ा सुनो पीछे से सुना तो धड़ 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 करके हरे कृष्णा का आवाज चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद इज राइटिंग, इज डूइंग एनीथिंग, बट इनका हृदय कंपन हो रहा है हरे कृष्णा का महामंत्र। दिस इज व्हाट इज द गुरु स्टेज, वी कैनॉट हो। अगर हमको ऐसा कुछ होता है, हमको ये समझना पड़ेगा मेरे में वो दुर्मति है, मैं देख नहीं पा रहा हूं स्पिरिट को, गुरु को आज स्पिरिचुअल पर्सन। सो वो लॉर्ड काइंडली बेस्ट टू दिस, वो नित्यानंद प्रभु काइंडली एम्पावर मी लाइक दैट, ओके। और गुरु को ही पूछ सकते हैं, प्लीज गुरु गिव मी मर्सी टू सी यू प्रॉपरली, ओके। सो 5 पोटेंट लिम्स ऑफ भक्ति, वो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 लिम्ब वर्णना करते हैं, फिर बोलते हैं 5 अंग जो है मुख्य है, बहुत पोटेंसी उसमें है। क्या बोलते हैं, पढ़ोगे वो श्लोक, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्तिर श्रद्धया सेवन। चैतन्य चरितामृत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास डेटी वर्षिप।
श्रीमूर्तिर विग्रह सेवन। सो आज हम देखेंगे कैसे नाम कीर्तन, ये साधना में आएगा, ठीक है। बेसिकली ऑल ऑफ दिस फॉल इनटू द साधना। साधना भक्ति का ये लिम है ना, ठीक है। एंड मोस्टली हमारा जो टॉक है ये 4-5 के ऊपर ही विशेष करके रहेगा। सो स्पिरिचुअल कल्चर, आप बोलोगे जो शिक्षा है, शिक्षा मतलब स्वाध्याय, पढ़ना, ओके। भगवान गीता में बोलते हैं आपको स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय जो है, क्या स्क्रिप्चरल स्टडी जो है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द होल स्पिरिचुअल कल्चर। कैसे? आज आप चीज एक पढ़ रहे हो, आपका जो भी असिमिलेशन हो रहा है 5 साल के बाद उसको पढ़ोगे तो असिमिलेशन विल बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट क्यों? यस, क्योंकि यू आर ग्रोइंग ईच डे। क्या आप साधना कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आप संग कर रहे हो, यू नो, आप वैष्णव एटिकेट को फॉलो कर रहे हो। तो while working in this path you are becoming more experienced. So swadhyaya is a continuous process and it will give different meanings in different time. Okay. कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति अक्षरे प्रति श्लोके नाना अर्थकय। नाना अर्थ scriptures will talk in different level as we progress. Okay. So all 5 are related for a nice scriptural studies. मेरा मतलब वही है। मतलब आप बोलोगे खाली मैं स्क्रिप्चरल स्टडी करूं, वो नहीं कर सकते हैं अगर हम ये all 5 को नहीं कर रहे, because they aid to study. So what are the moods of a good student of Shastra? This is very important for a साधका। हमारा मूड क्या होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। ये पहले तो फर्स्ट इज डिवोशन पढ़ेंगे सिद्धार्थ प्रभु जी। ये 10 क्या है? तो ये सब 10 मूड हैं, ऐसे बहुत और अनेक हैं, बट दिस एक इम्पॉर्टेंट मूड है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे ना, हमको एक डिवोशनल मूड में शास्त्र को अप्रोच करना चाहिए, नॉट इंटेलिजेंस। आप बोलोगे वो श्रीमद् भागवतम में नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि मेरा संस्कृत में पारदर्शिता नहीं है। नहीं चाहिए। भगवत गीता में नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा इंग्लिश में उतना अच्छा पकड़ नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद का जो मेन हैंड रिटन है उसको नहीं पढ़ पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, क्वालिफिकेशन नहीं है। लिटरेचर पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन है डिवोशन, नॉट इंटेलिजेंस। कैसे ना, एक आता है साउथ इंडियन ब्राह्मण। जब महाप्रभु साउथ इंडियन यात्रा में गए थे, एक ब्राह्मण श्री वैष्णव जो अपना वो टेम्पल क्या है साउथ में, श्रीरंगम टेम्पल, उधर ही एक ब्राह्मण जो है वो भगवत गीता का पाठ कर रहा है और पहला ही पृष्ठा में जो देख के बहुत भावुक होता है, फिर धीरे धीरे उसको वो करता है। हाँ, यस, सॉरी, हाँ, ऐसा लगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा। हाँ, मुझे लगा, अच्छा, ठीक है। तो यस, तो क्या है ना, साउथ इंडियन ब्राह्मण को सब लोग जो है बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो इलिटरेट है। क्या ये आता है हर दिन, इसको ऐसे पृष्ठा को उल्टा के जाता है, क्या पढ़ता है, क्या कुछ कुछ हो पा रहा है, पढ़ाई कुछ हो रहा है ना, उसको मजाक उड़ाते हैं और वो कूट के रोता है। सब लोग सोच रहे हैं भाई ये शायद हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसलिए रोता है। बट महाप्रभु जब गए तो देखा इस ब्राह्मण को, तो आलिंगन करें
तो महाप्रभु जब आलिंगन कर रहे, सब लोग भाई बोले अरे ये कौन है ना, ये तो बहुत स्पेशल ब्राह्मण है लगता है। तो महाप्रभु उधर डिक्लेयर करे कि यू हैव लर्न द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। उसको पूछे क्यों आप रो रहे हैं, उन्होंने बोले क्यों आप पढ़ रहे हैं भगवत गीता। बोले गुरु ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि डेली भगवत गीता पढ़ने के लिए। मुझे आता नहीं है तो मैं बुक पकड़ता हूँ, उसको जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं पढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ। फिर बोल रहे हैं रो क्यों रहे हो, आप जब पढ़ने में कुछ मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे। बोल रहे हैं ये चित्र देख के जो अर्जुन, मेरे को हर पृष्ठा में वही बात आता है, भगवान कितना महान है, उन्होंने कितना एक हम्बल पोजीशन लेके अर्जुन का सारथी बने। और यही बात स्मरण करते करते मुझे आंख से अश्रु ही निकलता है। बोलते क्या मैंने कृपालु है, क्या प्रेम है उनका डिवोटी के प्रति। फिर महाप्रभु बोले शास्त्र पढ़ के हमको इधर ही जाना है, यही रियलाइजेशन होना चाहिए। अभी यू आर ऑलरेडी देयर, सो स्क्रिप्चर्स हो गया आपका, सो यू आर द परफेक्ट रीडर ऑफ द स्क्रिप्चर। सो दैट मीन्स वो ये इंटेलिजेंस चाहिए नहीं, जरूरत नहीं, दैट इज नॉट द नॉन नेगोशिएबल लिम। है तो ठीक है, अच्छा है, बट नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा अगर इंटेलिजेंस है तो हम उसमें उसको क्रेडिट नहीं देना है कि भाई अभी शास्त्र में पढ़ पा रहा हूँ बिकॉज आई एम तो 10th में मेरा मैट्रिक था, मैट्रिक तक मेरा संस्कृत था, उसके बाद मैंने कुछ डिप्लोमा किया है इसलिए मेरा पकड़ है शास्त्र में। क्योंकि शास्त्र पढ़ना मतलब उसका हृदयबोध करना है ना, आत्मसात करना, मतलब शास्त्र के साथ रहना, उसका टीचिंग के साथ रहना। फिर एक ईगरनेस एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमको एक माइंड में देखो, हमको बाकी सारा चीज सब पुल कर रहा है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। हमने जो देखा श्रील प्रभुपाद का वो जो सब टिप्पणी, कुछ कोट्स, बुक्स आर द बेसिक। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं दीज आर माई एक्सटेसी, डिवोशनल एक्सटेसी, प्लीज रीड। आई वांट माई डिसाइपल्स, डिवोटीज ऑफ ISKCON टू रीड प्रॉपरली। एंड आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद अपने इतना व्यस्तता के अंदर एवरी डे रात में लिखते थे, कमेंट्री करते थे। क्यों? बोले माई बुक्स विल लिव फॉर 10,000 years एंड दिस ISKCON विल कंटिन्यू फॉर 10,000 years। तो श्रील प्रभुपाद का बुक्स में वो पावर है, तो क्या क्यों ना हम बुक्स का लाभ उठाएं। तो बुक्स को सेंस ऑफ अर्जेंसी। श्रील प्रभुपाद एक जगह में बोल रहे हैं अगर एक श्लोक तुम मेरा डेली पढ़ोगे 56 years लगेंगे। वेयर आर यू, कितना साल तुम्हारा बाकी है? कौमारा आचार्य थे प्राज्ञ, आप क्या 5 साल से भक्ति कर रहे हो, मेरा लिटरेचर पढ़ रहे हो? नहीं प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद मैंने स्टार्ट किया है 45 में। 45 में तो मतलब 110 years तक तुमको जीना पड़ेगा मेरा स्क्रिप्चर्स खत्म करने के लिए। अगर एक श्लोक, हम बोलते ना प्रभु एक श्लोक प्लीज पढ़िए, तो एक श्लोक से भी होगा नहीं काम, बट एटलीस्ट शुरुआत तो उधर से करें, है ना, धीरे धीरे फिर बढ़ाएं। और नहीं पढ़ रहा है मतलब इट्स ए बैड डील, बैड डील। तो पढ़ना है हमको हर रोज ना, 56 years। और श्रील प्रभुपाद का लिटरेचर के बाद आपका उज्ज्वल नीलमणि, ललित विदग्ध माधव, ललित माधव, शुद्ध भक्ति चिंतामणि, ये सब बहुत सारा अनेक हमारे आचार्यों ने और लिखे हैं। उनको कैसे पढ़ेंगे भाई, कब समय होगा? समझ रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद का लिटरेचर को हमको एक्सीलरेट करना। और ईगरनेस जैसे आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में जो भी स्पीकर है एंड हियरर है, पहले हियरर अपना इंटरेस्ट शो करता है। अगर नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि है सब बोलते हैं वयम त्रुना वित्रुप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे श्रृणवताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। बोलते हैं आप बोलते रहिए, सुत गोस्वामी डोंट स्टॉप, स्वादु स्वादु पदे पदे, ईच एंड एवरी पद जो है वो स्वाद, उसमें रस है, यू गो ऑन स्पीकिंग, वी हैव एंडलेस टाइम,
टू हियर, आप बताइए श्रीमद् भागवतम। तो सुत गोस्वामी बताया। हमारा तो क्लास जो है टाइम बाउंड 1 घंटा 1.5 घंटा में उसी में स्क्वीज करो समझ रहे। तो ईगरनेस टू हियर एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप देखो परीक्षित महाराज लास्ट 7 days ऑफ द लाइफ, 7 दिन बाकी है, बोल रहे हैं यस प्लीज आई वांट टू हियर श्रीमद् भागवत, प्लीज एनलाइटन। So this is how is our Srimad Bhagavatam. Narad Muni also, when he was speaking to Yudhishthir Maharaj, Maitreya to Vidura, Vidura is also pleading. Who is Vidura? Son of Vyasadeva. वो बोले पिताजी से मैं अनेक बार सुना है, बट ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं सुना है, ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं सुना है। बोलते हैं एक वर्ष आता है ना, बोलते हैं लॉर्ड शिवा बोलते हैं अहम बेती सुको बेती व्यासो बेती वाना बेती। बोलते हैं मैं जानता हूं श्रीमद् भागवतम, सुखदेव भी जानता है, व्यासदेव आई डाउट। क्यों भाई बोल रहे हैं ऐसे, क्यों बोल रहे हैं अहम बेती सुको बेती, क्यों बोल रहे हैं भाई? व्यासदेव इज लिटररी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, ही हिमसेल्फ हैज रोट श्रीमद् भागवतम। अरे लॉर्ड शिवा आप कैसे बोल रहे हो व्यास बेती ना बेती? बोले व्यास इफ लिटररी इनकारनेशन आई डाउट, बट व्यास इफ इज ए डिवोटी देन यस ही नोज। सो टू नो श्रीमद् भागवतम यू हैव टू हैव डिवोशन, नॉट इंटेलिजेंस। ओके, देन कैरेक्टर एंड डीलिंग्स ये फेवरेबल है फॉर रीडिंग स्क्रिप्चर्स। क्या है वो बोलते हैं, सुत गोस्वामी को बोलते हैं सब नैमिषारण्य ऋषि, ये फर्स्ट चैप्टर श्रीमद् भागवतम में आता है। वो बोलते हैं आख्यातानि अधितानि, बोलते हैं यू आर वेरी एक्सपर्ट लर्नेड स्कॉलर, देन अनघा यू आर सिनलेस, यू आर अधितानि, यू आर वेल रेड, बट ये सब एक्सटर्नल क्वालिटीज है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट ये है, बोलते हैं व्यर्थत्वम सौम्य तत्सर्वम तत्वतः तदानुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरोव गुह्यम अप्युत। बोलते हैं यू आर ओ सुत गोस्वामी, व्हाई वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर सौम्य एंड यू आर स्निग्ध। मतलब आप यू आर वेरी सिंपल एट हार्ट, यू नो, एंड यू आर वेरी प्योर एंड यू आर वेरी सबमिसिव टू योर गुरु। इसीलिए व्यासदेव एंड अदर्स हैव बेस्टोड देयर मर्सी एंड आप सब शास्त्र जो है अध्ययन कर पाए। सो ये जो सौम्य नेचर है, डुप्लीसियस मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए, हम सिंपल होना है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ओके, कि मैं जैसा हूं वैसा प्रोजेक्ट करूं, सिंपल, सिंप्लिसिटी को। अरे साधना भक्ति है, सब साधना ही कर रहे हैं, ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट स्तर पे है। जो रियल डिवोटी है वो ना किसी को जज नहीं करेगा इन व्हाट एवर कंडीशंस वी आर। इफ वी आर स्ट्रगलिंग, रादर ही विल हैव मोर कंपैशन टू अस। अरे हियर इज ए वेरी सिंसियर डिवोटी, लिटिल बिट स्ट्रगलिंग, ओ माय लॉर्ड कैन यू प्लीज हेल्प हिम? बिकॉज स्ट्रगल, दिस इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड सब लोग उस तरह से गए, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, दैट मीन्स सब लोग ऐसा, कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट निष्ठा से स्टार्ट करेगा, नॉट लाइक दैट, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम वो तो खाली नित्य सिद्ध डिवोटीज हो सकते हैं, जो भागवत मतलब आचार्य हो सकते हैं, अदरवाइज ओके। सो हमको सिंप्लिसिटी एंड सबमिसिवनेस टू द गुरु। भगवत गीता बोलता है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यू नो, प्रणिपातेन मतलब प्रणिपात करो गुरु को, तब जाके आपका होगा। सेम सॉन्ग हमने देखा वैष्णव सॉन्ग, बोलते कृपा बिंदु दियो, ठीक है, सो सरेंडर टू द गुरु। ओके, सिंपल नहीं होगा कैसे सरेंडर आएगा, नहीं। देन ग्रैटिट्यूड, ओके, हर पेज को जो हम जब पढ़ेंगे वी शुड, मतलब भागवतम जो कमेंट्री है श्रील प्रभुपाद का, जो फर्स्ट एंड सेकेंड कमेंट्रीज है ना कैंटो का, बिकॉज ही वाज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग ही विल बी राइटिंग, एवरीथिंग ही हैज पुट
in these two cantos. Okay, addressing to everyone. वो बोलते हैं ना कि my literature, वो क्या बोलते हैं, एक आता है, this will bring the revolution in the impious lives of the modern age people. So revolution खाली devotees के लिए नहीं, पूरा सोसाइटी को गाइड करने के लिए मैसेज उन्होंने दी शिला प्रभुपाद ने. ओके, सो हमको एक मैटर ऑफ ग्रैटिट्यूड, हाउ शिला प्रभुपाद हैज स्पेंड his last years in writing, these commentaries. कितना पेन उठा के, 3 हार्ट अटैक तो हो गया था जाते जाते, राइट ना, 2 हार्ट अटैक हो गया था. उसके बाद क्या है, और सक्सेस आ रहा है. 10,000 डिसाइपल को उन्होंने इनिशिएट किया, 108 टेम्पल्स बना रहे, फिर भी लिखे ही जा रहे हैं हर रात में. भाई किस लिए? वो तो बोले मेरा डिवोटीज को मैं एम्पावर करता हूँ, डिसाइपल को वो राइट कर लिखेंगे. So that's so much of compassion he has, क्योंकि उनको पता है these books will act as the guiding principle of his time. Okay, and humility and faith. Humility is very very important. Otherwise, जो door है, door for getting the knowledge is opened by humility. Humility is the door. Humility नहीं है तो scripture अंदर घुसेगा नहीं. Never. We have to, मतलब I am very scholarly, I have this background, that background, I am a GRE qualified. क्या शिला प्रभुपाद इंग्लिश वर्ड देखेंगे, सब मैं समझ जाऊंगा. I am very expert in alliteration, similes, metaphors, all of that. No. Humble. No, I have read all the books of Srila Prabhupada. Now I am qualified to read Srimad Bhagavatam. Oh, I have read I read Gita for 10 times. Now I can. कभी भी ऐसे भाव नहीं लेके आना चाहिए. क्लोज हो जाता है फिर वो उधर ही उधर. ह्यूमिलिटी इज द एसेंस. ठीक है. फिर बोलते हैं फेथ. फेथ नहीं होगा मतलब हमको टेस्ट नहीं करना है स्क्रिप्चर्स को. स्क्रिप्चर्स आर ऑलरेडी टेस्टेड एंड वेरीफाइड. अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंट्रोवर्शियल लग रहा है, तो मेरे में वो कमियां हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, बट स्क्रिप्चर्स आर परफेक्ट. जैसे हम एक रिलेशनशिप में जब फेथ होता है ना, तो हम बोलते हैं ना, स्पेशली मदर के पास वो रहता है, माई मदर कैन नॉट बी रॉन्ग. यू मे नॉट हैव द sentiments and emotion to understand her, but she cannot be wrong. This is our favorite dialogue. Siddharth Prabhuji is smiling. ठीक है. This is our story. This is unflinching faith we have in our mother. The same scripture. Scripture is also is our mother. Okay. Father is Krishna. Krishna has created scriptures. Okay. तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान गीता में बोलते हैं, अगर श्रद्धा है तो आप ज्ञान प्राप्ति होगा. बीइंग नॉन एनवियस. बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम ही बोलता है, धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम. भागवतम बोलता है कि कौन, ये सेकंड श्लोक है, इट इज टेलिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ समवन टू अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम. ओके. बोलते हैं निर्मत शरणाम सताम. जो व्यक्ति का अंदर नॉन एनवियसनेस होगा वही भागवतम समझ पाएगा. तो मालिस इंटेंट या एनवियस इंटेंट, ओके, वो रहेगा तो कोई वो नहीं हो पाएगा. वाह, प्रहलाद महाराज, हमने अभी स्टोरी देखा ना, मूवी, प्रहलाद महाराज का देखा, कोई भी एनवी नहीं है, किसी को भी नहीं है, उनका फादर को भी नहीं है, वो जो जितने भी उनको मारने जा रहे हैं उनको भी नहीं है, किसी को भी नहीं है. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज descended in him. Okay? So this is very important. I mean, just take, these all can be elaborated and lot of things can be spoken, but just to respect timing, हम एक, ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं क्या मूड हमको होना चाहिए. सर्विस एटीट्यूड. सर्विस एटीट्यूड कैसे? आप देखोगे जीवा गोस्वामी, हमने आचार्य सीरीज में डिस्कस किए थे, राइट. जीवा गोस्वामी, हु इज जीवा गोस्वामी? बनारस से क्वालिफाइड होके आए हैं, ब्राह्मण जो है सब उनको पढ़ाए हैं, 12 साल उन्होंने अध्ययन करके आए, बट कर क्या रहे? रूप गोस्वामी का उन्होंने क्या करते हैं,
जो पाम लीफ से उसको कलेक्ट कर रहे हैं, इंक प्रोवाइड कर रहे हैं, पाम लीफ में जो लिखा जा रहा है उसको सुखा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं जीव गोस्वामी। ही इज क्वालिफाइड टू राइट स्क्रिप्चर्स, बट जब वृंदावन से आए, जो बनारस से आए, तो रूप गोस्वामी पाद को वो ये सब मिनियल सर्विसेज में असिस्ट कर रहे हैं। बाय डूइंग इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फिर उनका प्रूफ रीडिंग करे, उनको हेल्प किए, फिर देन ही वॉज एम्पावर्ड टू राइट। सो हमको नहीं, अरे नाउ आई एम ए वेरी अकम्प्लिश डिवोटी, हाउ कैन आई डू दिस मिनियल सर्विस, मुझे थोड़ा ढंग का सेवा देना चाहिए। यह क्या है भाई, जिधर आपको लगाना चाहिए उधर ही आपको लगना चाहिए। सर्विस एटीट्यूड, व्हाई? बिकॉज सर्विस, अच्छा इधर दिया नहीं, सर्विस is a process through which input of knowledge will be converted into output of realization, otherwise realization हृदय में आएगा नहीं। वो नॉलेज खाली नॉलेज बन के रहेगा माइंड में। यू में कोट n नंबर ऑफ श्लोकास, यू कैन गिव नाइस क्लासेस, बट कुछ भी रियलाइजेशन नहीं आएगा। मतलब ऐसे थोड़ी ना क्लास देके देके थोड़ी ना अरे कृष्ण प्रेम को वो करना है, रियलाइज करना है। तो अभी झपकी आ रहा है एक्चुअली, ये जो है नहीं, ये आपका गलती नहीं है, क्योंकि ये तो निद्रा देवी को एम्पावरमेंट मिला है ना। कैसे कैसे पता है? कुंभकर्ण का जब मृत्यु हुआ तो निद्रा देवी लॉर्ड राम के सरेंडर में गया, बोले एक ही भक्त था मेरा, इतना भक्ति कर रहा था, ठीक है, उसको आपने मार दिया है, तो वह मैं कहाँ शरण लूंगा? तो बोल रहे होगा, लॉर्ड राम इज वेरी कंपैशनेट, बोले तुम्हारे लिए स्थान है, स्पेसिफिकली कलयुग में जब ये मेरा कथा चल रहा होगा, उधर उचित पात्रों को आप ढूंढो, आपको मिल जाएगा, और उधर शरण लो आप। ठीक है, सो आप नींद तो इस हरि कथा में तो प्रबल आता है। ठीक है, और ये हरि कथा में तो प्रबल आएगा। ठीक है, सो नरिशमेंट और रिमेम्बरेंस, बोलेंगे अरे मैंने ना पढ़ा हूँ, जितना पढ़ता रहता हूँ कुछ मुझे याद नहीं रहता है, कुछ नहीं याद रहता है। आप ऐसे कैसे याद रख पाते हो? मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। तो क्या पढ़ना वृथा है? इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्या फायदा, कुछ याद नहीं रह रहा है। बट नॉट लाइक दैट। आप बोलो अजीत प्रभु जी, ऑन 4th of August आपने क्या खाया था? कल का याद है, ठीक है, पिछले का याद नहीं। आपको याद है प्रभु जी? कोई घर इधर किसी को याद है? नहीं याद है। तो फिर क्यों 4th अगस्त का जो खाना जो है ना वो व्यर्थ है? इज इट? नहीं है ना, तो क्या फायदा है उसका? अभी याद ही नहीं है तो क्या फायदा? नरिशमेंट तो हुआ आपका बॉडी। सो व्हेन वी रीड, doesn't matter whether we remember or not remember, our soul is nourished. सोल का नरिशमेंट हो रहा, उसको जो सेटिस्फेक्शन भगवत कथा में है, भगवत संबंधित विषय में है, ठीक है, तो हो रहा। तो मुझे कभी-कभी याद आ भी जाता है at the right time whenever you need it. आता है तो बहुत अच्छा, मतलब ये एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सीकिंग द एसेंस ऑलवेज हमारा होना चाहिए कि सीकिंग द। कभी कभी हम पढ़ेंगे, वो बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलेंगे, ओ व्हाई वुमेन हैज टू वांट टू बी इक्वल विद द मैन। फिर आप बोले अरे इक्वालिटी तो होना चाहिए। आप फिर डाइग्रेस, एसेंस पे फोकस नहीं करें। कुछ ऐसा होगा, दिस इज आवर कंडीशनिंग, इसलिए हमको नो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हम carried away. No, focus on the essence. If this something I am not able to digest, park it, go on. Park it, go on. Okay? धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। समझ रहे? तो साराग्राही होना चाहिए, ठीक है, और भारवाही होना नहीं चाहिए। मतलब अगर हम प्राउड फील करेंगे ना
तो ये नॉलेज जो है भार बन जाएगा हमारे लिए, यू नो। मुझे क्लास मिलना चाहिए भाई, इतना मैं जानता हूं, मुझे क्लास मिलना चाहिए। क्लास ही नहीं हो रहा है, श्रीमद् भागवतम क्लासेस में मेरा नाम ही नहीं आ रहा है। अरे एफटीपी का अभी इतना बड़ा अच्छा, यू नो, बहुत अच्छे डिवोटी हो रहे हैं, इसमें तो मुझे बोलना चाहिए था, मेरा नाम ही नहीं है यार। फिर ऑर्गेनाइजर का पूछो, अरे व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू स्पीक टू द एफटीपी?